Great morning, dear students. I am Babita here, your English educator. Hope you are fit and fine at home. Today, we will start our second poem, and this poem is included in chapter number 3. And name of the poem is The Bazaar in the Bazaars of the Hyderabad. Name of the poem is In the Bazaars of Hyderabad, and that of the poet is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is very famous poet. She wrote many poems and she was also a freedom fighter. She fought for the Indians' struggle of independence. So she is very famous. Here she talked about the bazaars of Hyderabad. The bazaars of Hyderabad are very famous for its beauty as well as its variety of goods. Here the unity of Hindus as well as Muslims are very famous because the population of Hindus and Muslims are same and they are living a peaceful life. That is very famous regarding Hyderabad, and in the same way the bazaars of Hyderabad are very famous. Let us know more about the bazaars of Hyderabad in the poem. Yes, dear students, today we will talk about our second poem, and this poem is included in chapter number 3, and name of the poem is In the Bazaars of Hyderabad, and that of the poet is Sarojini Naidu. And this poem is about the bazaars of Hyderabad. Bazaars of Hyderabad are very famous because of its variety of things, as well as bazaars are very beautiful there. In the same way, there the unity of Hindu and Muslims are very famous there because the population of Hindus as well as Muslims are equal in Hyderabad, and they are living very peaceful life there, and that is strange but a real fact. Today we will talk about the bazaars of Hyderabad. How beautiful they are, means how beautiful the bazaars of Hyderabad. This poem was published in 1912. 30 lines poem divided into 5 C-sets. And the poet is Sarojini Naidu. She was born on 13th February 1879 and died on 2nd March 1949. She was considered as Nightingale of India, a political activist and poet, important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu is a famous figure because she participated in Indian struggle. Let us know about poem. What do you sell, O ye merchants? What do you sell, O ye merchants? जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में जो पॉइंट है वो मर्चेंट्स को संबोधित कर रही है. मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी. मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी. What do you sell, ओ ये मर्चेंट्स? मर्चेंट्स व्यापारी तुम क्या बेच रहे हो? Richly your wares. Richly your wares you displayed. मीन्स तुमने अपने सामान को भरपूर मात्रा में सजाया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है.
वेयर्स का मतलब होता है सामान। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, क्रिम्सन का मतलब होता है डार्क रेड कलर एंड सिल्वर, कि भाई फिर वो बता रहे हैं कि उन्होंने पगड़ी है जो रेड कलर की है और सिल्वर। टोनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट, टोनिक्स मतलब ये इसमें जो दिखाया है पिक्चर में ये होता है टोनिक्स, कि भाई पर्पल कलर का जो टोनिक्स है वो उन्होंने डिस्प्ले किया गया है। ब्रोकेट होता है कपड़े में। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, फिर उन्होंने मिरर्स को कुछ इस तरह से सजाया हुआ है कि भाई जैसे ज्वेलरी को सजाते हैं, कुछ डेकोरेट किया हुआ है मिरर को, जिसे कि वो बेचने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स, इसमें जो डैगर्स है, डैगर्स का मतलब क्या होता है? डैगर्स का मतलब होता है चाकू, छुरा, कि भाई उसको भी इन्होंने सजाया हुआ है। उसको, उसके जो हैंडल है, डैगर्स के जो हैंडल है उसको जेड नाम की धातु का हैंडल लगाया हुआ है। ये चीज़ वो मर्चेंट्स बेच रहे हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हाट डू यू वेट ओ ये वेंडर्स, वेट का मतलब होता है कि तुम क्या तोल रहे हो। वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं जो घूम फिर कर अपने सामान को बेचते हैं, वो होते हैं वेंडर्स। सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, सैफरन होता है केसर, लेंटिल होता है मैसूर दाल, राइस होता है चावल, कि भाई वो सैफरन को, लेंटिल को, राइस को तोल रहे हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड, फिर उसके बाद व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडन्स, मैडन्स का मतलब होता है एन अनमैरिड गर्ल, कि भाई तुम क्या ग्राइंड कर रही हो, क्या पीस रही हो। फिर वो कहती है सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस, सैंडलवुड एक तरह से मेकअप का सामान में भी इंक्लूड किया जाता है और उसको इत्र भी बोलते हैं। हीना होती है मेहंदी, स्पाइस होते हैं मसाले, कि भाई हम इन चीज़ों को पीस रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कहते हैं वो, जो सरोजनी नायडू है, पोइट है, वो उसके बाद एड्रेस करती है पेडलर्स को। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, पेडलर्स होते हैं जो पैदल चलकर अपने सामान को बेचते हैं, कि भाई तुम क्या पुकार रहे हो, किस चीज़ को तुम बेच रहे हो। फिर वो क्या रिप्लाई करते हैं, चेसमैन एंड आइवरी डाइस, चेसमैन होता है कि भाई चेस के मोहरे, और आइवरी डाइस होता है हाथी दांत, कि भाई चेस के मोहरे और हाथी दांत बेच रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेंजा, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ। फिर उसके बाद जो हमारी पोइट है वो गोल्डस्मिथ को संबोधित करती है, सुनार को संबोधित करती है कि तुम क्या बना रहे हो। रिस्लेट एंड एंकल एंड रिंग, रिस्लेट का मतलब होता है कड़ा, एंकलेट का मतलब होता है पायल, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, कि भाई जो पिजन्स होते हैं, ब्लू पिजन्स होते हैं, उनके पैरों में छोटी छोटी घंटियाँ बांधी जाती हैं, कड़े से पहनाए जाते हैं, कि भाई उनको हम उन बेल्स को बना रहे हैं। फ्रेल एज अ ड्रैगन्स फ्लाइज व्हील, ड्रैगन की ये पंखों की तरह वो हल्की हल्की होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, कि भाई डांसर्स के लिए कमरबंद भी वो बना रहे हैं, गोल्ड की कमरबंद। ग्रेडल्स का मतलब कमरबंद, दैट इज शोन इन पिक्चर एज वेल। स्कैबार्ड्स फॉर द गोल्ड ऑफ द गोल्ड फॉर द किंग्स, स्कैबार्ड्स का मतलब होता है कि भाई तलवार, कि राजा के लिए सोने की तलवार बना रहे हैं। दैट वॉज द रिप्लाई ऑफ गोल्डस्मिथ टू द पोइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, फिर वो फ्रूटमैन को संबोधित करती है कि तुम क्या बेच रहे हो। सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम, सिट्रन एक तरह का संतरे की तरह फ्रूट होता है, अनार और प्लम। फिर इसके बाद वो किससे पूछती है, इसके बाद वो हमारे जो पोइट है किसके पास आती है, म्यूजिशियन के पास, कि तुम क्या प्ले कर रहे हो, क्या बजा रहे हो, बजा बजा के क्या बेच रहे हो। वो रिप्लाई क्या कर रहे हैं कि भाई हम सितार, सारंगी, ड्रम,
ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये बजाने के। फिर उसके बाद आती है मैजिशियन के पास पोइट, उसके बाद आती है पोइट मैजिशियन के पास, और फिर मैजिशियन से पूछती है कि तुम क्या किन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। चैंट होता है कि भाई मंत्र जपना एक तरह से, कि भाई तुम क्या जप रहे हो। फिर वो क्या बताते हैं, स्पेल्स फॉर ईयर्स टू कम, कि आने वाली जो शताब्दियाँ होंगी वो भी इन मंत्रों का उच्चारण करके लाभ प्राप्त कर सकेंगी। स्पेल यानी जादू के वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। नाउ let us come on fourth stanza. That is our fourth stanza of the poem. What do you weave, O ye flower girl, with tassels of ozre and red. फिर वो फ्लावर गर्ल यानी उसके फूलों की माला लिए लड़की खड़ी है कि तुम क्या बुन रही हो, कि भाई जो ये कलरफुल जो रेड और ब्लू कलर के जो फूल लिए हुए हैं इनसे तुम क्या बुन रही हो। और जो हमारा इसमें टेसल्स है इसका मतलब होता है कि भाई अ डेंगलिंग ऑर्नामेंट। फिर उन्होंने रिप्लाई किया है कि भाई ऑर्नामेंट जो लटक रहा है, क्राउन, फिर क्राउन फॉर द ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के लिए सेहरा वो बना रहे हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि भाई चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, कि भाई मालाएं बना रहे हैं बेड को सजाने के लिए। कुछ एक माला होती हैं उसको सुई से उसको मालाएं बना रही हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डनर्स, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई वाइट शीट्स बना रहे हैं। वाइट शीट्स किसके लिए, कि भाई जो मर जाता है, मीन्स जो मर जाता, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, मीन्स जो मर जाता है उसके लिए जो एक सेज होती है मृत्युशैया, मीन्स वो तैयार कर रहे हैं। उस पर वाइट कलर के फ्लावर्स से वो उसको तैयार कर रहे हैं। दिस वॉज आवर लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोम। आई होप this is clear to you and you understand that you have to read this as well as you have to recite this poem. This will be your homework. Thank you and have a nice day. Bye bye.